Find the coordinates of the points which divides the line segment joining a minus 2 to b 2 8 into 4 equal parts. See here, a is minus 2 and 2, b is 2 and 8. It is divided into 4 equal parts. Now when the word 4 equal part comes, that means we have to use midpoint formula. So let me say that P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AP, and R is the midpoint of BP. So we have to assume that, let us say that P is the midpoint of AB, Q is the midpoint of AP, and R is the midpoint of PB. R is the midpoint of PB. So now, if I want to find out the coordinate of P, then what I'll have to do is I'll have to find the midpoint of AB. So what I'll do is coordinate of R, or I can say midpoint of, that word also can be used, midpoint of, what is it, A minus 2 to B 2 8, I have to find out, and the formula is x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. This formula I have to use. I will have to use it 3 times because I have to find the coordinate of P first, then Q, and then R. So what I will do, x1 plus x2 means this is x1, this is x2. So this will become, children, x1 plus x2, that means minus 2 plus 2 divided by 2, and 2 plus 8 divided by 2. Minus 2 plus 2 divided by 2, 2 plus 8 divided by 2. So this, if I solve it, it becomes 0 by 2, and this becomes 10 by 2, and this finally becomes 0 and 5. So that is what is the midpoint of AB. Now the first part I got it, AP and this one. Now next, what is it? Midpoint of AQ. Midpoint of AQ. Midpoint of AQ. A is minus 2 2, and Q we have to find out midpoint of A minus 2 2, and midpoint of, that is P, is 0 5. Already we have calculated. I need not have to write again xy. So this time what I will do is, or you can also say that coordinate of Q, just like I have written here. यहाँ पर जैसे मैंने coordinate of R coordinate of मैंने लिखा है कि coordinate of P या coordinate of P लिखना चाहिए. coordinate of P जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, वैसे आप यहाँ पर coordinate of Q लिख सकते हो, coordinate of R भी यहाँ पर आप लिख सकते हो. तो अगर ऐसा चाहिए तो ये होगा x1 प्लस x2 बाई 2, यानी क्या होगा, माइनस 2 प्लस 0 बाई 2, और ये होगा 2 प्लस 5 बाई 2. तो 2 प्लस 5 बाई 2 और माइनस 2 प्लस 0 होता है माइनस 2, यानी ये क्या होगा, माइनस 1 होगा. माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 होगा, माइनस 2 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, 2 होगा. 2 प्लस 5 होगा 7, और ये होगा 7 बाई 2, यानी ये होगा माइनस 1 और 7 बाय 2. द कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज माइनस 1 एंड 7 बाय 2. नेक्स्ट आएगा, आपको कोऑर्डिनेट ऑफ R चाहिए या मिड पॉइंट ऑफ P चाहिए आपको, PB. तो मिड पॉइंट ऑफ PB अगर आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, मिड पॉइंट ऑफ
midpoint of P is how much? 0 and 5, and B is how much? 2 and 8. तो आप चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ R भी आप कह सकते हो. So this is nothing but 0 plus 2 by 2, 8 plus 5 by 2. So x1 plus x2 यानी कितना होगा? 0 plus 2 by 2, 0 plus 2 by 2, 8 plus 5 by 2. So 5 plus 8 by 2. तो ये होगा 0 plus 2 है 2, so 2 by 2, और ये होगा 13 by 2. तो बच्चों ये 2 by 2 होगा 1, और ये 13 by 2 होगा 13 by 2 एज इट इज. यानी अगर आपको B का कोऑर्डिनेट चाहिए तो 13 by 2 यानी 6.5 होगा. तो वंस अगेन लेट मी टेल यू, हमने यहाँ पर क्या किया बच्चों? हमने यहाँ पर वी ट्राई टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी. मिड पॉइंट ऑफ ए बी कैसे करोगे आप? -2 + 2 डिवाइडेड बाय 0 2 2 + 8 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0.5 हो गया. फिर इसका मिड पॉइंट ढूंढना है. इसका मिड पॉइंट ढूंढना है तो क्या करोगे? -2 + 0 कितना होता है? -2 डिवाइडेड बाय 2 होगा -1. 2 + 5 होता है 7, 7/2. फिर इसका मिड पॉइंट ढूंढना है तो 0 + 2 होगा 2, और 2/2 होगा 1, और 5 + 8 होता है 13, सो 13/2. सिंपल सी बात है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस. इट्स वर्टाइसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4, -2, -1 टेकन इन ऑर्डर. टेकन इन ऑर्डर का मतलब होता है ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा, सी आएगा और डी आएगा. तो आप जानते हो फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला है बच्चों, एरिया ऑफ अ रोम्बस का फॉर्मूला है हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2. तो डायगोनल 1 यानी हाफ इंटू, इसको अगर आप डायगोनल 1 पकड़ोगे तो वो होगा AC, और डायगोनल 2 होगा BD. तो ये अगर आपको ढूंढना है तो आप क्या करोगे? AC ढूंढिए. AC ढूंढने के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूला कैसे यूज करना है ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू. AC इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. So distance formula you should not forget. So this is what we have done. Distance formula हमने कैलकुलेट किया. अब यहाँ पर डायरेक्टली व्हाट विल डू, AC मुझे चाहिए तो थोड़ा डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला यूज करना सीखिए बच्चों. दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2. तो x2 - x1 यानी -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर, -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 होल स्क्वायर, 4 - 0 होल स्क्वायर. इसको अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस विल बी इक्वल टू, इसको अंडर रूट -1 - 3 होता है -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16. आई होप यू अंडरस्टैंड. -1 - 3 होता है -4, और -4 का स्क्वायर होता है 16. फिर 4 - 0 होता है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16. सो 16 + 16, तो ये होगा AC इज इक्वल टू 16 × 2, यानी ये होगा 4√2 यूनिट्स. यानी एक डायगोनल मुझे मिल गया. कौन सा डायगोनल मिला मुझे? हाफ इंटू 4√2 AC वाला मिल गया. नेक्स्ट BD ढूंढूंगा. तो BD ढूंढने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? BD इज इक्वल टू, वंस अगेन आपको डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है. तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करना है तो B to D. अब देखो x2 - x1 यानी ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2. तो x2 - x1 यानी -2 - 4, -2 - 4 इज -6. तो ये होगा -6 का होल स्क्वायर. फिर से देख लो आप, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है. x2 - x1 यानी -2 - 4 होगा -6 का स्क्वायर, y2 - y1 यानी -1 - 5 का स्क्वायर होगा -6 का स्क्वायर. I hope you understand here. x2 - x1, -2 - 4 is -6, and -1 - 5 is -6. So this will be equal to 36 + 36, and 36 + 36 is
72, root of 72, and root of 72 is nothing but 36 into 2, and 36 into 2 is 6 root 2 units. So children, we have got both the diagonals now. I got this diagonal as well as this diagonal. So into 6 root 2. So this if I multiply, 4 into 6 is 24, root 2 into root 2 is 2 divided by 2. So 2 cancels here. So the answer is 24 square units. So the diagonal is, answer is 24 square units. What did I do here? आपको क्या कहा है सर, अगर हम आपको 4 पॉइंट्स देते हैं A, B, C और D और आपको ग्राफ पेपर नहीं दिया जाएगा, क्या आप हमको उस रोम्बस का एरिया बता सकते हो? देखिए, हमने रोम्बस को बनाया ही नहीं, मगर बनाए बगैर केवल पॉइंट्स के माध्यम से हम उसका क्षेत्रफल बता सकते हैं. सिंपली बाय नोइंग द कोऑर्डिनेट्स वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस विच इज नॉट ड्रॉन. जिसको हमने बनाया नहीं है उसका एरिया हम बनाए बगैर भी बता सकते हैं. हमने क्या किया, डिस्टेंस फार्मूला यूज किया. AC को -1 -3 होता है -4, 4 - 0 होता है 4. वैसे यहाँ पर 4 माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाएगा और 5 माइनस ऑफ -1 प्लस 6 हो जाएगा. यानी इस तरह से हम डिस्टेंस फार्मूले का उपयोग प्रॉब्लम के एरिया फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं.